Any one of you? Okay. So here, let us start study today about the connections. So in our subject or curriculum, just a minute, it is very important to understand about the connections, the study of connection, because when you will construct a structure, you need to connect, you need to assemble those particular members with the other member. So in order to connect those members, you need a particular connection. So let us study about the connections here. So okay, so see, there are several kind of a connection can be studied. So here, the fabrication of structures between following members. See, the various kind of connections are. What can you see? The beam column connection. Well, a beam and the column supposed to be connected. So that kind of connection you can observe. Beam and beam connection you can observe. Well, the beam to beam connection. Well, if this is a beam, then the cross beam are often can be seen in this way. So here you have to connect. Next, the column and column mean this is a column and this is, I'm sorry, this is another column. So you have to connect this column to column. Column and brackets. Well, column and brackets is, you might have seen this kind of structure. So here connections are being made to connect this bracket. So column and bracket connection can be seen. Then column and caps. So column and caps are often look like in this way. So this is a column, say, and under that there is another column. So you have to connect these two cap of the column. So this is a cap of this column, this is a cap of this column. So in order to connect these two cap, we can observe this kind of connection, column and caps. Next is base plate of trusses. Well, truss connection you have seen. So that truss connection are often connected with the base plate. Gusset is also a very important, what I can say, important member or section which we need to study in our following subject. So I will come to that section or member. I will elaborate that with good detailing, because you might have not seen that particular thing in your surroundings. So I will come to that. Next is purlin and rafter. So purlin we have studied. So here purlin. So these were the purlin. So that purlin and the rafter connection. Then the wind braces and column. So the bracing system, mean this, if this is the column, so that bracing system is provided. So that connection can be termed as a fabrication, as the fabrication of structure. As per that connection we can observe. Next is stiffness in plate girder. Well, if this is a plate girder,
So I'm just showing you a part of that. If this is a I section, say, okay. This is the I section. So here, this plate girder often look like if you just take a segment of that plate girder. So the stiffeners are often provided in this way. Okay, so that stiffener connection with that plate girder can be seen. Then the diaphragm in plate girder, well, this if a parallelly to plate girder is situated, okay, in this manner, then a diaphragm can be connected in this way. So I am showing you the bottom part of it. Okay, these are kind of a diaphragm which has been put to secure the support in between these two plate girders. Next is the flange and wave connections in plate girders. Well, flange and wave connection I have shown you. If this is the flange, and this is the wave. Okay, so here that flange flange to wave, that connection can be done in the plate girders. Then the stiffener plate in column joints. So there are several numerous joints or connection we can observe while fabricating the structure. Okay, next is okay. Next is the method of fabrications. So what are the, here actually it also represents the meaning connection. So here, what are the methods of connection to connect one member with another member? So these are the connection method. These are the method to connect. So first one is the rivet joint, second is bolt joint, third is weld joint, and fourth one is it can be combination of two or three of the above. Okay, you can use rivet plus weld, or you can use bolt plus weld, or you can use both of three of these joined together. Okay, so the what are the requirements of good connection? तो एक गुड कनेक्शन बनाने का रिक्वायरमेंट क्या होगा, क्या हमारा उसका पर्पस होगा? So the first point says it should be rigid enough to avoid fluctuating stresses which may cause fatigue. मतलब कि कनेक्शन को एकदम रिजिड के जैसा एक्ट करना पड़ेगा. जैसे कि इफ यू कैन सी दिस इज अ बीम एंड दिस इज अ कॉलम, राइट? If you want to connect it, so see, we are creating a hole and putting a connection here. Say this is a bolt connection I'm providing. See that bolt, just because we are creating a hold and putting this bolt within that hold and securing that connection, so what happens, it might not act properly as a rigid connection, right? So if a proper settlement or a proper bolting connection, if it get loosened, okay, so that member can be able to rotate in this way. So that is why that connection should work as a rigid connection, or that should be enough, it should be rigid enough. So there in this connection, through this connection, that member will distribute its force to another member, right? So that connection should work as a rigid member, or sorry, a rigid part, or it should be enough rigid in order to avoid fluctuating stress. So there can be many kind of stress come at this connection. So that connection has to resist all those
kind of fluctuating stress, and fluctuating stress causes static failure. We have studied that. So next, it should be such that there is the least possible weakening of the part to be joined. Mean we have to design in that way, मतलब कि इसको ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि मतलब जैसे कि कुछ कुछ स्ट्रक्चर का एक वीक पॉइंट होता है, ओके, तो हम जितना हो सके उस स्ट्रक्चर के वीक पॉइंट को कितना घटा पाते हैं, ये हमारा फोकस होना चाहिए. So that least possible weakening of the parts to be joined. Okay. Next says it should be such that it can be easily installed, inspected and maintained. Obviously, कनेक्शन तो आइडियल तभी बनेगा ना जब हम उसको आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे, उसको आसानी से देख रेख में मतलब देख रेख कर सकते हैं और उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं. Okay, these are the requirement of a ideal connection, or you can say a good connection. Okay. So let us start with the rigid connection, rivet connection. So there are three types of connection we are going to study about. So first, you can observe from the diagram. So these are the rivet connections. So you have seen so many structures with this kind of connection in your vicinity. I hope you have seen so many connection in this way which has been put. So these are the rivet connection which can be shown from the outside. So this part which is observable, this part is the head part of the rivet. So the rivet bolts or nuts does look like this. Okay, so this part is called the head and this part is called the shank. Okay, and this is the diameter of the rivet head and this is the nominal diameter of the rivet. Okay, so this called nominal diameter and this called the rivet diameter. Okay, so what are the advantages of rivet connections? Well, the ease of riveting process. Well, इसको लगाने में बहुत ही आसानी है, मतलब इसको जस्ट एक ये हो यहाँ पे अगर होल क्रिएट कर दे, अगर यहाँ पे होल क्रिएट कर देंगे उसमें रिवेट यहाँ पे डाल दिया जाता है, तो इसको मतलब बहुत आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है. तो ये एक ईज ऑफ रिवेटिंग प्रोसेस है. नेक्स्ट, रिवेट कनेक्शन इज परमानेंट इन नेचर, मतलब एक बार इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो ये परमानेंट कनेक्शन है, ये परमानेंट हो जाएगा. परमानेंट एंड मतलब नॉन परमानेंट हम किसको बोलेंगे, उसी कनेक्शन को बोलेंगे परमानेंट, जो कि एक बार अगर कनेक्ट कर दी तो उसको दोबारा खोल नहीं सकते. और नॉन परमानेंट वही होगा जो कि एक बार लगा दिया उसके बाद अगर कुछ चेंज करना चाहिए, उस बोल्ट को चेंज करना चाहे तो हम फिर से उसको बाहर करके उसके जगह पे दूसरा कोई कनेक्शन लगा सकते, दूसरा कोई कनेक्शन लगा सकते, तो वो होगा नॉन परमानेंट. तो ये एक परमानेंट टाइप ऑफ कनेक्शन है. तो परमानेंट होने का भी कुछ फायदा भी है. नेक्स्ट इज चीपर फैब्रिकेशन कॉस्ट, ये बहुत ही सस्ता होता है. लो मेंटेनेंस कॉस्ट. नेक्स्ट इज dissimilar metals can also be joined, even non-metallic joints are possible with rivet joints. मतलब कि ये dissimilar metals can be joined, मतलब एक similar और सिमेट्रिक पैटर्न का मेटल को भी हम इस रिवेट जॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं. और नॉन मेटालिक जॉइंट्स, मतलब कि जो जॉइंट्स मेटालिक नहीं है, उस नॉन मेटालिक जॉइंट्स को भी हम रिवेट जॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है. नेक्स्ट इज रिवेट कनेक्शन इज पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन रिमोट एरिया, मतलब कि जो जगह पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है वहां पे भी हम रिवेट कनेक्शन को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ता इंस्टॉलेशन के टाइम पे.
तो ये तो रहा कुछ एडवांटेजेस। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ रिवेट कनेक्शन। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? necessity of preheating the rivets prior to driving। तो डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी रिवेट्स को पहले मतलब इसको पहले हीट करवाया जाता है। उस कनेक्शन के यहाँ पे डालने से पहले कभी कभी इसको हीट करवाया जाता है। तो हीट करवाने के लिए उस हीटिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा हेक्टिक बन सकता है, तो वो थोड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज हाई लेवल ऑफ नॉइज। तो बहुत यहाँ पे नॉइज क्रिएट होता है व्हाइल इंस्टॉलिंग द रिवेट कनेक्शन। नेक्स्ट इज skilled work necessary for inspection of connection। Next, cost involved in careful inspection and removal of poorly installed rivets। मतलब कि अगर कोई रिवेट को मतलब केयरफुल इंस्पेक्शन के दौरान अगर कोई रिमूवल एक्टिविटीज हुआ, मतलब कोई भी रिवेट को रिमूव करना पड़े जो कि पोरली इंस्टॉल्ड है, उसको ठीक करवाने के लिए बहुत खर्चा लग जाती है। Next is the labor cost is high because you need a skilled labor and skilled labor may charge a very high labor cost. Okay, so rivets are mostly divided in two categories. One is power driven riveting or hot rivet, another one is hand driven riveting or cold rivet। मतलब कि hot rivet और cold rivet ये दो टाइप का है। इसके अंदर भी है पावर ड्रिवन शॉप रिवेट एंड पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। मतलब कि एक पावर ड्रिवन मतलब पावर यूज करके एक जो शॉप में बनाया जाता है रिवेट, और ये है पावर से ही चलता है जो कि फील्ड में कहा जाता है। सिमिलरली ये हैंड ड्रिवन का जो है, ये हैंड ड्रिवन वो भी शॉप रिवेट है और एक हैंड ड्रिवन वो है फील्ड रिवेट। अब हॉट रिवेट और कोल्ड रिवेट का ये जो कंपैरिजन है, हॉट रिवेट मतलब कि ये कभी कभी कोई मतलब रिवेट इंस्टॉल करने के पहले उसको हीट करवाया जाता है। तो वो हीटिंग प्रोसेस के लिए क्या होता है, वो थोड़ा एक्सपैंड किया जाता है, वो थोड़ा मतलब रिवेट एक्सपैंड हो जाता है। तो वो हीटेड जो रिवेट है उसको कनेक्शन के अंदर डालने के बाद जब धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा तो वो श्रिंक करने लगेगा, और जब श्रिंक करने लगेगा ये हेड पार्ट जो है ये इसको हम हॉट रिवेटिंग बोलते हैं। और कोल्ड रिवेट मतलब कि ये मतलब इसको मार मार के उस होल में इंस्टॉल किया जाता है, और वो अपने जो एम्बिएंट या एटमॉस्फेरिकल जो करंट टेम्परेचर होता है उसी में ही किया जाता है। तो इसी वजह से इसको कोल्ड रिवेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज कॉमनली यूज्ड रिवेट हेड। तो रिवेट हेड ये दोनों तरफ का ही होता है ऑलमोस्ट। तो इसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं। ये है हमारा स्मॉल डी, इसका जो लिखा जाता है ये है स्नैप हेड, इसका ये होता है लेंथ, ये उसका होता है हेड। हेड का जो डायामीटर होता है वो 1.6 टाइम्स ऑफ दिस डायामीटर होता है, और ये जो हेड का जो लेंथ होता है वो होता है 0.7 टाइम्स ऑफ दिस डायामीटर। मतलब कि जो नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिवेट होता है उसका 0.7 टाइम्स उसका डायमेंशन होता है, और ये जो हेड डायमीटर होता है वो 1.6 टाइम्स इस नॉमिनल डायमीटर का होता है। और इसको बोलते हैं फ्लैट हेड रिवेट, इसको बोलते हैं स्नैप हेड रिवेट। तो ये फ्लैट हेड रिवेट का जो ये उसका हेड है ये 2 गुना होता है इसके नॉमिनल डायमीटर से, एंड इसका जो हेड लेंथ होता है वो 0.25 टाइम्स ऑफ दैट नॉमिनल डायमीटर होता है। So some assumption must, मतलब कुछ assumption हमको दिमाग में रख के इस कनेक्शन के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। ये सब चीज मतलब एज्यूम कर लेना पड़ेगा कि ये सब चीजें ऐसे ही है, उसको मद्देनजर रखते हुए या फिर उसको कंसीडर करते हुए हम उसको डिजाइन करते हैं। So what is the first assumption?
दिस सेज द फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स इज नेग्लेक्टेड। मतलब क्या होगा, मतलब ये से अगर ये एक प्लेट है, इसके साथ और एक प्लेट को हम कनेक्ट करेंगे, है ना, तो इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो बताया जाता है कि ये कनेक्शन को जब हम स्टडी करेंगे तब ये प्लेट के अंदर का जो फ्रिक्शन होगा उसको अवॉइड करेंगे। जबकि मतलब फ्रिक्शन तो ऑब्वियसली होता ही है इन अ फिजिकल एग्जाम्पल, फ्रिक्शन तो ऑब्वियसली क्रिएट होता है, पर एज्यूम करेंगे कि फ्रिक्शन नहीं है। अगर इसको एज्यूम करते हैं कि फ्रिक्शन है, तो फिर हमारे ये बोल्ट का जो स्ट्रेंथ निकालने का जो फॉर्मूला या तरीका होता है, उसमें फ्रिक्शन ऑफ प्लेट को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं इन assumption. Next is the shear stress is uniform on the cross section of the rivet. मतलब कि रिवेट का जो ये क्रॉस सेक्शन है, इसमें हम shear stress को हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मानते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन द पोर्शन ऑफ प्लेट बिटवीन द रिवेट होल्स इज यूनिफॉर्म। मतलब कि ये प्लेट का जो डायरेक्ट स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि रिवेट होल के ऊपर आएगा, मतलब ये जो प्लेट है उसमें से यहाँ पे रिवेट का होल बनाया गया है। तो अब ये जो प्लेट का जो डायरेक्ट स्ट्रेस है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेस का, वो इस होल के ऊपर जो आएगा वो यूनिफॉर्मली आएगा। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं कि अनयूनिफॉर्म आएगा, एक बड़ा एक कम होगा एक छोटा होगा, ऐसा नहीं होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा डिस्ट्रीब्यूशन जो वो होल के रिवेट होल के बिटवीन में आएगा। Next is rivets in the group subjected to direct loads share the load equally। मतलब कि ये अब जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन के ऊपर एक रिवेट तो नहीं लगता है, मल्टीपल रिवेट लगता है। ओके, तो अब इसको एज्यूम किया जाएगा कि ये हर एक रिवेट में जो प्लेट के ऊपर जो डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा, उस स्ट्रेस को ये हर एक रिवेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो ये हम एज्यूम करके फिर डिजाइन को प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट से दैट द बेंडिंग स्ट्रेस इन द रिवेट इज नेग्लेक्टेड। मतलब कि रिवेट का जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसको हम ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं। Next assumption is rivets fill completely the holes in which they are driven. Obviously, जो होल हम लोग पहले क्रिएट करते हैं, हम अज्यूम करेंगे कि रिवेट पूरा उस होल को कंप्लीटली फिल कर देता है, तो वो अज्यूम करेंगे। नेक्स्ट, द bearing stress distribution is uniform and contact area is D into T. Well, what is D here? If this is the rivet head and this is the shank part, so अब क्या होता है, प्लेट के अंदर ये शैंक वाला पार्ट ही तो रहता है ना, तो ये वाला डी ही लगेगा। तो दैट डी, अब ये किसी प्लेट के अंदर जाता है, से उस प्लेट का जो थिकनेस है वो है ये टी। ओके, तो ये टी इंटू ये डी, ये वाला पार्ट ही हमारा बियरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा, जो कि यूनिफॉर्म एंड कॉन्टैक्ट एरिया विल बी दैट डी इंटू टी। ओके, नेक्स्ट सेज दिस कम इनटू द बोल्ट कनेक्शन। ओके, अब तो ये हो गया हमारा रिवेट कनेक्शन का स्टडी। अब करेंगे हम बोल्ट कनेक्शन। तो बोल्ट कनेक्शन में देखो, ये IS 800 2007 में क्लॉज 2.4 में दिया गया है कि बोल्ट्स, नट्स, वॉशर shall conform as appropriate to these codes। मतलब ये जो कोड्स है IS 1363 1967, IS 1364 1967, IS 1367, मतलब 6364 67, उसके बाद 3640, उसके बाद 3757, उसके बाद 6623 और देयर कॉरेस्पॉन्डिंग जो ईयर्स है,
इस IS कोड में बोल्ट्स, नट्स, वॉशर, इन सब चीजों का स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस इन सब कोड में दिया गया है, तो उसको वेरीफाई करके फिर हमको करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये हमारा बोल्ट कनेक्शन रहता है। अब देखो इसमें थोड़ा डिफरेंस है फ्रॉम द रिवेट कनेक्शन। रिवेट कनेक्शन में कैसा था, देखो ये यहाँ पे कोई चेंज तुमको दिखता है, ये पूरा एक प्लेन सरफेस दिख रहा है, और इसका जो हेड है ये थोड़ा मशरूम की तरह दिखता है, ये रिवेट है ना। पर अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो बोल्ट का जो ये पार्ट दिख रहा है, ये यहाँ पे इसका जो शैंक का जो रिवेट के जगह पे ये तो पूरा ही शैंक था, पर यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट थोड़ा अलग दिखेगा और ये वाला पार्ट थोड़ा अलग दिखेगा। ये वाला जो पार्ट है, मतलब जिसका सरफेस एरिया ऑलमोस्ट प्लेन है, उसको हम बोलेंगे शैंक। और बाकी का जो रेस्ट पार्ट है जिसपे ये पैच लगा हुआ रहता है, ये स्पाइरली, उसको बोलते हैं थ्रेड। तो ये जो पूरा थ्रेड का जो पार्ट है, जिस लेंथ तक ये बिछा हुआ है, इसको बोलते हैं थ्रेड लेंथ। और ये पार्ट जो होता है, ये जो शैंक वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ग्रिप लेंथ। और टोटल लेंथ को बोलते हैं नॉमिनल लेंथ। ओके, और ये होगा हमारा डी, हेड डायमीटर। अब हेड डायमीटर भी देखो, ये पूरा ऐसे ब्लंटली नहीं है, ये भी थोड़ा हेक्सागोनल शेप का दिखता है। ओके, तो ये हमारा बहुत सारा डिफरेंस है। यहाँ पे एक नट प्रोवाइड किया जाता है। अब ये होता है बोल्ट और ये होता है नट। मतलब कि नट को जब हम बोल्ट के साथ थ्रेड में सर्कुलर वे में मतलब इंसर्ट करके उसको प्लग करते हैं, तब उनको हम नट बोल्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को बोलते हैं रन आउट। मतलब कि ये शैंक का जो पार्ट है ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रन आउट। Okay, so these are some specification of bolt here. So let us study what are the advantages. So advantages are, it needs less manpower. Next, the high strength bolts are much stronger than rivets. तो strength के हिसाब से bolt rivet से बहुत ज्यादा आगे है। Hence, bolted connection needs less fasteners than rivet joints. मतलब क्या? मतलब कि ये सपोज एक सेक्शन है, ठीक है, तो इसी सेक्शन को अगर हम रिवेट और जॉइंट से रिवेट और बोल्ट से अगर मेजर करेंगे, ये भी एक सेक्शन है, सिमिलर सेक्शन, तो इसको हम रिवेट लगाते हैं, इसको बोल्ट लगाते हैं। तो ये एक यहाँ पे रिवेट, यहाँ पे रिवेट दे रहे हैं, ठीक है। अब सिमिलर सेक्शन को सिमिलर फोर्स आते हुए अगर हम इस पे बोल्ट यूज करते, तो शायद देखा जाता कि हमको बोल्ट ओनली यहाँ पे 4 देने से ही चल जाएगा। यहाँ पे जैसे 9 रिवेट्स देना पड़ा था, यहाँ पे 4 बोल्ट से ही शायद काम हो जा रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है, नीड लेस फास्टनर्स। ये बोल्ट्स, रिवेट्स, इसको फास्टनर्स भी बोलते हैं। तो ये बोल्ट्स का स्ट्रेंथ लेने की क्षमता ज्यादा होने की वजह से ये हमारा नंबर ऑफ बोल्ट्स भी कम यूज होता है। नेक्स्ट इज बोल्टिंग ऑपरेशन इज मच फास्टर। मतलब बोल्ट को बहुत जल्दी से हम मतलब उसको इंस्टॉल कर देते हैं। नेक्स्ट इज the bolting operation is very silent in contrast to hammering noise in rivet. मतलब कि जैसे रिवेटिंग का एक डिसएडवांटेज था कि वो बहुत एक नॉइजी प्रोसेस है, क्योंकि उसको मतलब ठोक के, उसको टील ठोक के हैमरिंग करके उसको कनेक्ट किया जाता है, तो वो प्रोसेस की जरूरत नहीं होता है बोल्ट के टाइम की। तो इसके वजह से ये बहुत ही साइलेंट प्रोसेस है। okay? बोल्ट इज अ कोल्ड प्रोसेस, मतलब उसको हीट करवाने के, प्री हीट देने की कोई जरूरत नहीं है, तो नो रिस्क ऑफ फायर। नेक्स्ट, द बोल्ट कैन बी रिमूव, रिप्लेस्ड और retightened easily in the event of faulty bolting or damaged bolts due to accident or hazards.
तो ये हमारा सबसे ज्यादा सुविधा है। अगर कोई सेक्शन का कोई कनेक्शन फेल हो जाता है, उसको हम रिप्लेस करके एक दूसरा बोल्ट भी वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट कनेक्शन में ही है। तो ये इसका एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है। मतलब इसको हम इजीली रिमूव, रिप्लेस, रिटाइट कर सकते हैं, रिटाइटन कर सकते हैं इजीली। और कुछ डिसएडवांटेज जो है वो क्या है? The bolted connections have lesser strength in axial tension as the net area at the root of thread is less। मतलब कि ये बोल्ट का एक जो क्वालिटी है वो है कि ये एक्सियल टेंशन में थोड़ा वीक है। एक्सियल टेंशन क्या है? ये अगर प्लेट है सेम, ये दूसरा प्लेट है, तो इस पे बोल्ट को अगर मैं इंस्टॉल करूंगी तो ये जो यहाँ से अगर एक कोई प्रेशर आता है या फिर कोई स्ट्रेस आता है, तो देख सकते हैं कि हम कि ये बोल्ट का ये जो एक्सियल टेंशन स्ट्रेस लेने का जो क्षमता ये थोड़ा कम होता है। So in axial tension, as the net area at the root of the thread is less, क्योंकि ये पार्ट तो हमारा मतलब कॉमन सरफेस, मतलब जो सरफेस प्लेन है, ये जो सरफेस प्लेन है वो एक प्लेट पे रहेगा और दूसरा जो सरफेस है वो दूसरे प्लेट में रहेगा। तो देखो ये डिफरेंशिएट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया के वजह से हमारे ये टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्षमता भी अलग अलग रहेगा। तो इसके वजह से ये यहाँ पे जो ये जो थ्रेड पार्ट है, ये थ्रेड पार्ट में हमारा जो क्रॉस सेक्शनल वेरी होने की वजह से इससे हमारा स्ट्रेस लेने का क्षमता भी घटता है थोड़ा। तो ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज अंडर वाइब्रेटरी लोड्स द स्ट्रेंथ इज रिड्यूस्ड इफ द कनेक्शन गेट्स लूज्ड। ऑब्वियसली अगर कोई वाइब्रेटरी लोड्स कॉन्टिन्यूसली आता है उस कनेक्शन के साइड में, तो वो कनेक्शन लूज होने का चांस रहता है। Next is the unfinished bolts have lesser strength because of non-uniform diameter। मतलब कि अनफिनिश बोल्ट मतलब क्या है? प्रॉपरली उसको बोल्ट होल में इंस्टॉल करके नट को ठीक से एडजस्ट करने के बाद ही वो एक कंप्लीट फिनिश बोल्ट होगा। तो ये अनफिनिश बोल्ट है लेसर स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर। मतलब इसका जो यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है डायमीटर की, इसके वजह से ये स्ट्रेंथ लेने का क्षमता कम होता है। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चरल लुक। अब देख सकते हो ये आर्किटेक्चरल लुक वाइज ये कैसा दिखता है, ये फ्रंट से, और रिवेट का कैसा दिखता है। तो हम देख सकते हैं कि बोल्ट का जो ये है, बोल्ट को दिखने में उतना अच्छा नहीं दिखता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है आर्किटेक्चरल लुक। ओके, सो लेट अस स्टडी अबाउट नेक्स्ट द टाइप्स ऑफ बोल्ट। कितने टाइप्स के बोल्ट हैं? सो अकॉर्डिंग टू द मटेरियल एंड स्ट्रेंथ, ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ स्टील बोल्ट। ये होता है हमारा मटेरियल एंड स्ट्रेंथ के हिसाब से ये दो कैटेगरी ऑफ बोल्ट होता है। और अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ शैंक कितने टाइप के होते हैं? अनफिनिश्ड और ब्लैक बोल्ट, टर्न बोल्ट एंड हाई स्ट्रेंथ ग्रिप बोल्ट, जिसको हम HSFG बोल्ट भी बोलते हैं। तो ये होता है हमारा टाइप ऑफ शैंक के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन, और ये होता है हमारा मटेरियल एंड स्ट्रेंथ के हिसाब से ये हमारा क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ बोल्ट। ओके, सो अब और भी कुछ स्पेसिफिकेशन है जिसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज पर टू पिच एंड फिट ऑफ अ थ्रेड। तो पिच एंड फिट ऑफ अ थ्रेड, इसके हिसाब से क्या क्या क्लासिफिकेशन रहता है? स्टैंडर्ड पिच बोल्ट, फाइन पिच बोल्ट, कोर्स पिच बोल्ट, एंड अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ हेड एंड नट उसको हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं स्क्वायर बोल्ट एंड हेक्सागोनल बोल्ट। तो ये जो फिगर दिखे थे, ये बोल्ट को हम हेक्सागोनल बोल्ट बोलते हैं। ये देखो, ये हमारा एक टिपिकल डायग्राम ऑफ अ हेक्सागोनल बोल्ट विद नट। ठीक है, तो ये
ये इसका डायग्राम है। अच्छा, तो ये अभी तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? Did you find any problem understanding up to this?